اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ شک نہیں ہے۔ اب میرے پیارے توجہ کریں، اب اسی قرآن کے اندر آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے اس آیت کو کیوں پکڑا، آپ آگے کی اور بھی آیتیں پکڑ سکتے تھے، لیکن توجہ کریں میرے پیارے، آج آپ نے یہ جو ہے نہ جانے کتنی تعداد میں بوتلوں کو اکٹھا کر دیا ہے، نہ جانے کتنی تعداد میں آپ تیل کی شیشیاں اکٹھا کرتی ہیں۔ آپ کا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ خدا کا کلام ایسا کلام ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر کے دب کر دیا جائے تو یقین جانو میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہو تو دور ہوتی ہے نا۔ تو میرے پیارے اگر اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے پیارے تم اسلام سے نکل جاؤ گے، تم اسلام سے نکل جاؤ گے۔ قرآن تعالیٰ نے اعلان ہے، قرآن فرماتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی قرآن کے اندر آگے بڑھو میرے پیارے، اللہ فرماتا ہے وَآتِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ توجہ کریں میرے پیارے، دیکھو میں آپ کو کہاں لے کر چلتا ہوں میرے پیارے۔ آج میرا نوجوان غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، میرے پیارے خرگوش کی نیند تم سو رہے ہو۔ میرے پیارے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو، اگر تم نے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں کیا تو میرے پیارے آنے والے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجدیں ہماری کھائی جا رہی ہیں، علماء کو ہمارے بند کیا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا میرے پیارے، قرآن کے اندر میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، توجہ کریں میرے پیارے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، نہا لیا، دھو لیا، پاک ہو گئے، ٹوپی بھی لگا لی، خوشبو ملی تو خوشبو بھی لگا لی۔ رمضان شریف کے مہینے میں پابندی کے ساتھ آپ نے نمازوں کو ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر کیا تو بولیں یا سبحان اللہ۔ میرے پیارے منڈی ہلانے سے کام نہیں چلے گا میرے پیارے، تمہیں جو ہے زبان کو ہلانا پڑے گا میرے پیارے۔ جو زبان کو نہیں ہلایا کرتے ہیں میرے پیارے حقیقی معنوں میں گونگے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ جو زبان خدا کے نام پر نہ بول سکے اس زبان کا کیا کام ہے میرے پیارے۔ جو زبان خدا کے نام پر خاموش رہے، ہم یار ایسی زبان ہمارے منہ میں نہ ہو خدا کرے، ایسی زبان ہمارے منہ میں ہی نہ ہو خدا کرے، اللہ اس سے پہلے ہی لے لے۔ ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ ہے کچھ؟ ہے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اب میرے پیارے سنیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ قائم کرو۔ پڑھنا نہیں، پڑھنا تو 2-4 دن کا ہوا، قائم کا مطلب ہے کہ جس طرح سے یہ مسجد قائم ہے اب یہ ہمیشہ رہے گی۔ بے شک بے شک، اب یہ ہمیشہ رہے گی۔ آپ نے مکان بنا لیا، آپ نہیں ہیں، آپ کی اولادیں رہیں گی، لیکن وہ ہمیشہ والا ہے نا، ہمیشہ والا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی ہے تو میرے پیارے آپ نے تو اس چیز کے اوپر عمل کیا کہ پڑھو۔ میرے پیارے ہم اس طرح کے مولوی نہیں کہ آپ کو ترجمہ بتا کر کے جو ہے غلط جائیں، نہ میرے پیارے قرآن کے اعتبار کی مصلاتا نماز قائم کر، نہ کہ پڑھ۔ قائم کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ ریگولر کنٹینیو کرتا ہے۔ اب سنیں میرے پیارے، صرف نماز سے بھی کام نہیں چلنے والا، صرف نماز سے بھی کام نہیں چلنے والا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے نماز پڑھ لیا ہم بہت بڑے جو ہے عالم وقار ہو گئے، ہم رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، مقبول ہو گئے۔ نہ میرے پیارے، تو بڑی غلط فہمی میں جی رہا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اگر صرف نماز سے کام چلتا تو آگے 2 جملوں کا بیان نہیں کیا جاتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات ادا کرو۔ کیا کرو؟ زکات ادا کرو۔ اس کے بعد رب نے فرمایا وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے فرائض ادا کرو، نماز پڑھنا فرض، زکات دینا واجب، اور اس کے بعد محمد کی غلامی کا پٹا اپنی کلے میں ڈال دو۔ یہ اللہ کہتا، ہم نہیں کہتے، یہ کوئی ملا نہیں کہتا میرے بھائی، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَآتِیُوا الرَّسُولَ یعنی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو۔ غلامی، اطاعت، فرما برداری کا مطلب کیا ہے کہ اپنی گردن میں محمد عربی کی غلامی کا پٹا ڈالو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا
कि नमाज से भी काम नहीं चलने वाला, सिर्फ ज़कात अदा करने से काम नहीं चलने वाला। और मेरे प्यारे, जब तक कि तुम मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाल लेते हो, तब तक कि मेरे प्यारे तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। चाहे तुम कितना नमाज पढ़ लो, चाहे तुम कितने रोजे रख डालो, और मेरे प्यारे लोगों का तो यहाँ तक की मानना हो गया कि मेरे आका को इख्तियार नहीं। इंशाअल्लाह आज फकीर बता करके जाएगा कि मेरे आका को कितना इख्तियार है। बोले सुभान अल्लाह। और मेरे प्यारे, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आज खत्म कुरान है, आज खत्म कुरान है मेरे प्यारे। ये रमजान शरीफ का महीना, बाबरकत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मेरे प्यारे मोमिन मुसलमान जो है, जब ये महीना रुखसत होता है तो उसकी आंखों में आंसू हुआ करते हैं। जब ये महीना तशरीफ लाता है तो बड़ा खुशी मनाता है, बड़ा खुश होता है। और इसी महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है कुरान को नाजिल किया, शबे कद्र की रात, शबे कद्र की रात कुरान को नाजिल किया। और कुरान मेरे प्यारे क्या चीज है, आपको मैंने बतलाया ना, शीशियां इकट्ठा की हैं, आपका ईमान बोलता है, आप नहीं बोलते, आपका ईमान बोलता है मेरे प्यारे, बोलता है और दौड़ता भी है, और ये कहता है कि दुनिया के अंदर लाखों किताबें हैं, उन तमाम किताबों पर अगर कोई किताब भारी है तो वो कुरान है। हजारों किताबें हैं, उन किताबों से पूछो, एक किताब तू क्या करने आई? खामोश रहेगी, गूंगी रहेगी, पहली रहेगी। लेकिन कुरान से सवाल करो, ऐ कुरान तू दुनिया में क्या लेने आया, क्या करने आया? तो कुरान अल्लाह ऐलान कहता है कि मैं मोमिनों के लिए हिदायत बन करके आया, जो मोमिन है उनके लिए हिदायत बन करके आया, जो बीमार है उनके लिए शिफा बन करके आया। मेरे प्यारे, कुरान है क्या? अगर कोई लाइलाज है, इलाज नहीं हो पा रहा है, नमाजे फजर के बाद 41 मरतबा अगर सूरे फातिहा पढ़ करके जो है मरीज के ऊपर दम कर दिया जाए तो मेरे प्यारे उसकी लाइलाज वाली बीमारी दूर होती नजर आती है। यह है कुरान। तुमने कुरान को समझा क्या है मेरे प्यारे? तुमने कुरान को जाना क्या है? आज लोग कुरान को फाड़ रखे हैं, आज लोग कुरान को जला रहे हैं, लेकिन हम अपने कानों में घट्टी डाल करके बैठे हुए हैं। मौला अली की शान में गुस्ताखी हो रही है, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। ऐ मुसलमानों, तुम खामोश हो, तुम खरगोश की नींद सोए हुए हो। हमारे तुम मुसलमान कहलाने की क्या लायक हो, नहीं हो मेरे प्यारे। इसकी वजह मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, आप सुने मेरे प्यारे। सोशल मीडिया को आप खोल करके देखें मेरे प्यारे, मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरे प्यारे। मेरे प्यारे, रमजान शरीफ का महीना है मेरे प्यारे, ताकत से ताकत इंसान जो है मेरे प्यारे कमजोर हो जाया करता है, लेकिन मेरे प्यारे रूहानी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ताकत अता करता है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे? आज देखिए मेरे प्यारे क्या हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर। मेरे प्यारे, आप नमाज आप नहीं पढ़ते, रोजे आप नहीं रखते मेरे प्यारे, ज़कात आप नहीं अदा करते मेरे प्यारे। ज़कात किसके लिए जो है, किस पर वाजिब है मेरे प्यारे? जो मालिक के निसाब है उसके ऊपर ज़कात देना वाजिब है। और याद रखना मुसलमानों, इसने ज़कात अदा नहीं किया है, कल मैदान महशर के दिन जो है 2000 साल पुराना सांप उसे तोड़ाएगा, गंजा सांप होगा, तोड़ाएगा और कहेगा कहाँ भागता है, मैं तेरा माल हूँ। अल्लाह, इतना दर्दनाक अजाब है मेरे प्यारे। जो है ज़कात किसके ऊपर जो है वाजिब है, मैं आपको बतलाता हूँ। अगर 5.5 तोला आपके पास चांदी है, या अगर ये नगी है, इसके बाद अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है, इन दो चीजों में से कोई एक चीज पाई जाती है या इतनी रकम पाई जाती है जिसके ऊपर 1 साल गुजर गया है, तो आपके ऊपर ज़कात का देना वाजिब है। वो गरीबों का हक है, वो मेरे प्यारे आपके माल का मैल है, वो आपके माल का मैल है। और आप तो मालिक, आप तो मुख्तार हो, क्या तुम मैल को खाना पसंद करोगे मेरे प्यारे? जिसके लिए अल्लाह ने इसको रखा है उस तक पहुंचा दिया जाए मेरे प्यारे। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें लगी हैं जो मालिक के निसाब तक पहुंचे, तवज्जो करें मेरे प्यारे, मसला बताने लगा हूं यार, सुनने मेरे प्यारे तवज्जो के साथ। अगर आपके पास इतना भी नगी है और मेरे प्यारे यानी 2 चीजें मालिक के निसाब तक नहीं पहुंचती हैं, तो दोनों चीजों को मिलाओ, एकजा करो। और अगर आपके पास थोड़ी बड़ी रकम है जिसके ऊपर साल गुजरा है,
उन तीनों चीजों को मिलाओ और उसके बाद जो है फिर देखो कि जो है उसकी कीमत लगवाओ। कीमत लगवाने की बाद अगर उसमें से जो है उसकी कीमत से कोई एक चीज खरीद सकते हो, सोना या चांदी, तब भी आपको ज़कात वाजिब है, आपको अदा करना पड़ेगा मेरे प्यारे। आज मेरे प्यारे हम पर परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि हमने गरीबों का हक मार करके रखा है मेरे प्यारे। हमारी जबानों में लज्जत क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरे प्यारे हम कुरान तो पढ़ते हैं, हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे हम कुरान के फरमान पर अमल नहीं करते हैं। हम अपने अंदर जो है पाकी और सुथरी नहीं लाते हैं मेरे प्यारे। हम नमाज पढ़ने के लिए गए तो मेरा दिल कहीं और लग रहा है, कहीं और मेरा जहन जा रहा है मेरे प्यारे। आजकल नमाजों में होता क्या है, आजकल तरावियों में होता क्या है, पीछे बातें की जाती हैं, आगे इमाम साहब को तरावी पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे। क्या तुम जानते हो आपकी उस हंसी से, आपकी उस मजाक से इमाम के ऊपर कितना फर्क पड़ता है? क्या आप जानते हो इमाम की जुबान लड़खड़ाने लगती है, इमाम को परेशानी होती है, क्योंकि वो तुम्हारा इमाम है, सारा तुम्हारा भरम इमाम के ऊपर होता है। उस वक्त जितनी आप नमाजें इमाम के पीछे पढ़ते हो, उन तमाम नमाजों का हिसाब इमाम को देना पड़ता है मेरे प्यारे। तुम जो है अपने आप को क्या समझते हो? और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इमाम जो है काफी ज्यादा जो है गलतियां कर जाता है, भूल जाता है कुरान के अंदर। अब गलतियां उसकी नहीं है, गलतियां तुम्हारी है, तुम्हारा ढंग से वजू नहीं हुआ है, और जो है तुम जो है सबके अंदर मजाके कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुम समझते हो मेरे प्यारे ये नमाज क्या है, ये इबादत क्या है? मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे, ये नमाज इबादत रब से डायरेक्टली जो है बात करना है, रब से डायरेक्टली जो है मेरे प्यारे मुलाकात करना है। अब तवज्जो करें मेरे प्यारे, तवज्जो करें। जो बंदा अपने रब से डायरेक्ट बात कर रहा हो और फिर मेरे प्यारे वो रब जिसका फरमान है कि मैं अपने बंदों पर जो है 70 माह से ज्यादा रहम करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ और प्यार करता हूँ मेरे प्यारे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई बंदा प्यार करता है, आपसे मुलाकात करने के लिए आए और बीच में कोई दखल अंदाजी करे तो आपको गुस्सा आता है, आपको परेशानी होती है, आपको लाल आता है, तब मेरे प्यारे तुमको नमाज में नींद बांध के खड़े हो। अब एक बंदा आया है, आपको हंसा रहा है, आपसे कुछ बातें कर रहा है, तो याद रखना मुसलमानों, तुमने जो है वो बंदा अपने रब से बातें कर रहा था, वो बंदा अपने रब से जो है मेरे प्यारे जो है बातें कर रहा था, तुमने उसके जो है मिलाप में, तुमने उसकी बातों में जो है खलल डाला है, यानी रब की बातों में तुमने खलल डाला है। और जो रब तबारक व तआला की बातों में खलल डाले मेरे प्यारे, क्या बताओ मेरे प्यारे, वो अल्लाह तबारक व तआला लड़ाई मोल नहीं ले रहा, क्या लड़ाई मोल ले रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत से। और जो अल्लाह से लड़ाई मोल ले उसका अंजाम क्या होगा मेरे प्यारे? आप समझते हैं उसका अंजाम क्या होगा? कब्र में भी परेशानी, हश्र में भी परेशानी, हर जगह परेशानी। रूह निकलेगी तो ऐसे निकलेगी जैसे कि बेरी के पेड़ के ऊपर चादर डाल करके खींचा जाए। क्या तुम ये चाहते हो मुसलमानों? मेरे प्यारे तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम यहाँ पर ईद की खुशी भी मनाओगे, यहाँ पर तुम है अच्छे सस्ते लिबास भी पहनोगे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा मेरे प्यारे देख फिलिस्तीन के मुसलमानों को, जो बच्चा बच्चा परेशान है, 10 साल का बच्चा रो रहा है, 5 साल का बच्चा रो रहा है, बिल्कुल मैदान एक तरफ वो बड़ा वाला मामला हो गया है फिलिस्तीन के अंदर। मेरे प्यारे उन यहूदियों ने, इजराइलियों ने फिलिस्तीन के ऊपर उन बम का इस्तेमाल किया है जिसको कहा जाता है फास्फोरस बम कहा जाता है, जिसके धुएं से इंसान का इंतकाल हो जाता है, जिसके धुएं से इंसान जो है खतरनाक बीमारियों में मुलव्वस हो जाता है। मेरे प्यारे अगर आपके ऊपर ये परेशानी आए तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे? अल्लाह को अकबर कबीरा। वो मेरे प्यारे वहां के मुसलमानों को मैं दाद देता हूँ, उनको सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। आए मुसलमानों, उन मुसलमानों सब जो है तुमको सबक हासिल करना चाहिए कि वो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नौजवान हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, सारे के सारे लोग जो है उन यहूदियों के जो है मेरे प्यारे निशाने पर हैं, लेकिन फिर भी नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, फिर भी रोजा रख रखे हैं मेरे प्यारे, फिर भी कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। हम यार एक मुसलमान हम और आप हैं मेरे प्यारे, उनसे कुछ सबक सीखो मेरे प्यारे। मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी थी, क्योंकि यहाँ से हिंदुस्तान से फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए मदद भेजी जा रही है। वो भगोना जिसके अंदर बिरयानी बनाई गई और उसके बाद उस बिरयानी को फिलिस्तीन के जो है बच्चों को, फिलिस्तीन के मुसलमानों को तकसीम किया गया। अब उस भगोने के अंदर कुछ ना बचा। अल्लाह अकबर कबीरा
मेरे कलेजा दहल गया वीडियो देखने के बाद। वो भगोना पूरा खाली है, पूरा भगोना खाली है, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं, 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, बच्चे आते हैं। वो जो मेरे प्यारे भगोने के अंदर बिरयानी का जो ऑयल लगा हुआ करता है, जो तेल लगा हुआ करता है, मेरे प्यारे अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस भगोने में हाथ डाल करके बेचारे उसको अपनी तलवारों से काट रहे थे, लेकिन फिर भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़े, फिर भी नमाज नहीं छोड़े, फिर भी रोजा नहीं छोड़े। हम यार एक मुसलमान हम हैं, हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं, हमारे पास अपना घर भी है, हमारे पास अपने माँ बाप भी है। अल्लाह को अकबर कबीरा, वहाँ के मुसलमानों को कोई पता नहीं है, उनके बाप का भी इंतकाल हो गया, उनके बाप को भी मारा गया, उनकी माँ को भी मारा गया, उनकी खाला को भी मारा गया, उनके मामू को भी मारा गया, यहाँ तक कि पूरे खानदान को मेरे बर्बाद कर दिया गया। लेकिन फिर भी वो नन्हे नन्हे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठा करके तोते की हालत में इस तारीख के वक्त बैठ करके रब की बारगाह में बस यही दुआ करते हैं, मौला हमारी हिफाजत फरमा, मौला मस्जिद अल-अक़सा की हिफाजत फरमा। मस्जिद अल-अक़सा है क्या मेरे प्यारे? मस्जिद अल-अक़सा से कोई मुसलमानों के लिए दुनिया के अंदर जितना भी मुसलमान है, जो भी मुसलमान है, वो मस्जिद अल-अक़सा सबकी है मेरे प्यारे। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उनसे कुछ सबक हासिल करें, उनसे कुछ सीखें? और मेरे प्यारे एक मर्द मुजाहिद, हमारे इंडिया का मर्द मुजाहिद, जिसको हम मुफ्ती सलमान अज़हरी कहते हैं, जो हमारा साहिब है, जो हमारा रहनुमा है, आज वो जेल के अंदर है। क्यों है मेरे क्यों है? आप कहेंगे दुआ तो करते हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता। अमा यार कबूल कैसे करेगा? तूने ज़कात नहीं निकाली है, तूने ज़कात नहीं अदा किए हैं, तूने गरीबों का हाथ मारा है, तूने बड़ों को गालियां दी हैं। सारे हमारी जबान में वो तासीर नहीं लगी। मैं आपको बताऊं, नबी के जमाने में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, जब उनको कोई परेशानी होती, जब कैद साली पड़ जाती, बारिश नहीं होती, सहाबा इकराम आपस में बैठ जाते और आपस में एक सहाबा दुआ करता और बाकी लोग जो है आमीन बोलते। तब तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमाता और बारिश फरमा देता था। आज हमारी जबान पे वो तासीर नहीं होती मेरे प्यारे। हमने हराम का लुक़मा खाया है, हमने जो है मुसलमानों का हक मारा है। अमा यार ज़कात ना अदा करना, ये मुसलमानों का हक नहीं मारना है तो क्या है मेरे प्यारे? अगर किसके पास नहीं होगा 50,000 रुपए अकाउंट में, जिसपे एक साल नहीं गुजरा हो, तो ज़कात वाजिब है मेरे प्यारे, वाजिब है, अदा कर ले मेरे प्यारे। तेरे माल का वो मैल है, उसको निकाल ले, गरीबों को दे दे, ताकि उनकी भी फीस बन सके, ताकि वो भी अपने बच्चों को कपड़े ला सके। क्या आपको अच्छा लगता है मेरे प्यारे? फिलिस्तीन की वीडियो को उठा करके देख लो सोशल मीडिया पे, लंबे लंबे आपके पास फोन है मेरे प्यारे, रोजाना आप जो है दुनिया भर की वीडियोस को देखते हैं, जरा उसको भी सर्च करके एक बार देख लो मेरे प्यारे। मेरी आंखों में आंसू आए। तकरीबन मेरे प्यारे मस्जिद में हूँ, वल्लाह मेरे प्यारे, तकरीबन जो है मैं 10 से 15 मिनट तक में जो रोता रहा उस वीडियो को देख करके, कलेजा दहल गया। नन्हे नन्हे बच्चे थे मेरे प्यारे, उस भगोने में हाथ पहुंच करके चाट रहे थे। आज उनके पास खाना नहीं है, आज उनके पास पानी नहीं है, आज उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे वो सब्र कर रहे हैं, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है मेरे प्यारे। अगर आपको पता चल जाए, आपको मालूम हो जाए कि जो है हमारा मौत, हमारा इंतकाल फला तारीख को होगा, तो आप माल इकट्ठा ही नहीं करेंगे मेरे प्यारे। इकट्ठा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो है आज ही खत्म कर दो, जो है आज ही लुटा दो मेरे प्यारे। गरीबों की जो है हेल्प किया करो, उनकी मदद किया करो, हालांकि वो दुश्मन तुम्हारा है, लेकिन मेरे प्यारे मैं आपको बताऊं, मोमिन का तकाजा तो ये है कि 3 दिन से ज्यादा जो है किसी से दुश्मन नहीं रखना चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे मैं आपको बतलाने लगा हूँ, एक आखिरी बात करता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ए मुसलमानों, अपने अंदर इंकलाब पैदा करो। अगर आपने इंकलाब नहीं पैदा किया तो याद रखना, आज हमारी मस्जिदें जा रही हैं, मदारिस जा रहे हैं, और हमारे उलमाओं को जेल में डाला जा रहा है। सलमान अज़हरी जेल में क्यों गए? अपनी लड़ाई के लिए नहीं गए, अपने घर बार के लिए नहीं गए, अपने प्लाट के मामले में नहीं गए, बल्कि वो इज्जत जो है नामूस के रिसालत पर जो है पहरा दे रहे थे। नामूस रिसालत की जो है हिफाजत करते हुए जेल के अंदर गए, और जेल से
उस मर्द के अंदर मुजाहिद का पैगाम क्या आता है, सुने मेरे प्यारे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उस मर्द के अंदर ने पैगाम भेजा है, मुसलमानों तुम जिस राह पे जा रहे हो वो राह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी राह वो है कि सिराते मुस्तकीम पर चलो, नमाजों की पाबंदी करो और आजकल के नेता और हुक्मरानों के कदमों में अपने सर को न रखो, बल्कि अपने सर को रब की बारगाह में झुका लो और सच्चे दिल से रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर लो, यकीनन तुम्हारी दुआएं रब की बारगाह में कबूल होंगी। और उस मर्द मुजाहिद ने ये कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ, अगर मैं जेल के अंदर हूँ, आपको डरना नहीं है, आपको सहमना नहीं है। और जो उलमा हैं वो जिस राह से हक गोई करते हैं तो उस राह से हक गोई करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बहुत जल्द आप लोगों के दरमियान मौजूद होंगे। ये पैगाम आया था मर्द मुजाहिद का। अभी आजकल का नौजवान अगर जेल में पहुंच जाए तो उसके मुंह से बस यही निकलेगा, जो है वालिद साहब मुझे यहाँ से निकालो, वालिदा मुझे यहाँ से निकालो, भाई साहब मुझे यहाँ से निकालो, मर्द के अंदर। और वो मेरे प्यारे नाज करता है अपनी गिरफ्तारी पर। अगर उसके हाथों में हथकड़ी पड़ी, उसको गिरफ्तार किया गया, तो मेरे प्यारे किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि आमना के लाल, आमना के लाल की मोहब्बत में गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी, तो खुदा की जान देने के लिए भी मुसलमान तैयार रहता है। और मेरे प्यारे तवज्जो करें, आज सुन्नी मुसलमान अपने आका से मोहब्बत इतनी क्यों करता है, क्यों करता है मेरे प्यारे? क्योंकि उनकी मोहब्बत ईमान में दाखिल है। बेशक बेशक बेशक। अगर मोहब्बत नहीं मेरे आका की सीनों में, मेरे प्यारे आपका सीना खोखला है, कल मैदान में महशर के दिन देखते हुए जहन्नम में तुम्हारे सीने को जला दिया जाएगा। बेशक। वो सीने बेकार हैं, वो जबानें बेकार हैं, उन जबानों को काट करके फेंक देना चाहिए जिन जबानों पर ये अल्फाज आते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं माज़अल्लाह।